लोगों का फेस्टिवल अच्छा गया हो. So let's resume the classes. So let me check to which topic I have covered in your batch. Uh, 11:32. I guess I was discussing the concept of string handling. Let me check. Okay, this is what this is the string formatting. So we covered, I think, most of the methods of string like upper, lower, swap case, starts with, ends with, like these methods. Fine. So today we will discuss the concept of indexing and slicing in string handling. How indexing and slicing work in Python programming language. Most important concept, not only in string handling, but also in other data structures like list, tuple, set, data frame kind of numpy arrays concept. Right? So the topic is indexing and slicing. Most important topic. Recording. Yes, Praveen, you can record the class. Yes, done. Okay. Arjun, you can also record the class. Fine. So, suppose I'm having a string like India. So, if I represent this India in the memory, it looks like I N A. सो पाइथन के अंदर जब आप किसी स्ट्रिंग को लिखते हैं तो स्ट्रिंग इज बेसिकली सीक्वेंस ऑफ करेक्टर एंड फॉर ईच करेक्टर इंटरप्रेटर असाइंस ए पर्टिकुलर इंडेक्स इन द स्ट्रिंग. सो जो पहला करेक्टर होगा, index of first character will be like 0. It will start from 0. This is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक और इंडेक्सिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया था अदर लैंग्वेजेस लाइक सी, सी प्लस प्लस, डॉट नेट, जावा में. दैट इज रिवर्स इंडेक्सिंग. So for last character, Python assigns -1 index, and then -2, then -3, -4, and -5. Kind of. Fine. Now, in Python programming language, we are having some methods regarding this index. Suppose if I need to find index of a particular character, so we are having two special methods for this purpose. First method is index method and second method is find method. Using index or find method, we can find index of a particular character. Fine. So if I use index method, so I will write the syntax as dot index, and as argument I will pass that particular character or a particular substring. Suppose if I write here n, so it will return the positive index of this n. So positive index means 0 1 2 3 4 वाला जो इंडेक्स है इनमें से रिटर्न करेगा. ठीक है, तो ये हमें वापस करेगा 1. Now suppose
if I write here print as index of I, then what it will return? Because in this string s, you can see I is present in multiple places, like at 0th position you can see this I, or at 3rd position you can also see this I. So in this index method returns the position of first occurrence. पहली बार ये जो करेक्टर है इस स्ट्रिंग में किस पोजीशन 0. Suppose if I write here one more I, doesn't matter, क्योंकि सबसे पहले तो अभी भी ये 0 पर ही आएगा. Now this is what index. You can also use find method to find the index of a particular character. You are getting again one. Now the question is, what is the difference between index and find method? So difference is what? Suppose if you write here s dot find z, and z is not present in this s string, see what you will get. You will get -1. -1 का मतलब ये नहीं है कि वो a का पोजीशन दे रहा है. -1 का मतलब है कि ये जो करेक्टर है ये इस s में प्रेजेंट नहीं है. बट in place of find, if you write this index method, you will get error, substring not found. So index और find method दोनों का पर्पस एक ही है. दोनों में डिफरेंस है इस बात का कि जो हमारा find method है ये आपको एरर नहीं देगा. एलिमेंट अगर ये करेक्टर नहीं है तो फिर ये -1 वापस करेगा. -1 indicates that particular character or substring is not present in this given string. Whereas in case of index method, you will get error if this particular character or substring is not present in this string. Fine. So this is the difference between index and find method. Fine. So if I write here index, so let me write here. Now वापस आते हैं उस पर और मान लीजिए इस बार स्ट्रिंग मैंने चेंज करी. सर दूसरे वाले आई का इंडेक्स नहीं निकाल पाएंगे. So if I write here I live in India. So this time I am having 1, 2, 3, 4, 5 occurrences of this I. So if I need to count number of occurrences of a particular character, so we are having count method in the string. You can use count method, and here you can write this I. Now, if you write here print s dot index of I, definitely it will give you 0. पहली बार जो आया था वो आपको ला कर देगा. Similar to index, we are having another method that is r index. r index क्या करता है, राइट हैंड साइड से हमारी जो अकरेंस होगी
वो सबसे पहली किस पोजीशन पर हुई है वो ला कर देगा। दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो आर इंडेक्स रिप्रेजेंट्स राइट इंडेक्स। राइट हैंड साइड से सबसे पहली अकरेंस आई की किस पोजीशन पर है वो पोजीशन ला कर देगा। कौन सी वाली? पॉजिटिव वाली। तो जो 13 या 14 आए थे वो आपको 13 पोजीशन पर ये अवेलेबल है। ठीक है, अब इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। कैसे कस्टमाइज करेंगे थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पर जो इंडेक्स मेथड है, इंडेक्स मेथड में आप पर्टिकुलर करेक्टर की पोजीशन पता कर सकते हैं और आप ये बता सकते हैं कि शुरू के कितने करेक्टर को स्किप करना है। तो इफ आई राइट हियर लाइक 5, इट मींस ये जो इंडेक्स मेथड है ये इस आई की फर्स्ट अकरेंस को सर्च करेगा। कब से? इनिशियल 5 करेक्टर को स्किप करने के बाद, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 5 करेक्टर स्किप होने के बाद अब जो आई है वो ये वाला होगा। और ये आई किस पोजीशन पर होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसका आउटपुट आना चाहिए 7। 5 करेक्टर को स्किप करने के बाद आई की फर्स्ट अकरेंस कहां पर है? 7th पोजीशन पर। ठीक है, इसी तरह से आप आर इंडेक्स के अंदर भी क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ करेक्टर स्किप जो आप करना चाहते हैं वो यहां भी पास आप कर सकते हैं। फाइन, तो इस तरह से हम इंडेक्स मेथड को यूज कर सकते हैं डिफॉल्ट मैनर में। इंडेक्स मेथड को यूज कर सकते हैं स्किप मोड में। आप आर इंडेक्स को यूज कर सकते हैं, आर इंडेक्स को भी स्किप मोड के साथ यूज कर सकते हैं। फाइन, तो ये हमारे इंडेक्स मेथड का कॉन्सेप्ट हो गया। सेम जो फाइंड मेथड होता है उसमें भी आप इसी तरह से यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास पोजीशन है, मुझे उस पोजीशन का करेक्टर निकालना है। अभी क्या है? अभी आपके पास करेक्टर है, उसकी पोजीशन आप निकालने की बात कर रहे हैं। अब सपोज करिए मेरे पास पोजीशन हो और मुझे उसका करेक्टर निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट दिया गया इंडेक्स ऑपरेटर। सो इंडेक्स ऑपरेटर इज नथिंग, इट इज अ पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स, पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंड यू हैव टू यूज ए प्रीफिक्स दैट इज योर स्ट्रिंग। प्रीफिक्स लगाना है मतलब इस स्क्वायर ब्रैकेट के पहले एस लगाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? अपना पोजीशन। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट में जब आप पोजीशन लिखते हैं तो यू आर फ्री टू राइट एनी पोजीशन वेदर इट इज पॉजिटिव और इट इज रिवर्स इंडेक्स, बोथ वर्क्स इन दिस स्क्वायर ब्रैकेट। आप चाहे नेगेटिव लिखें चाहे पॉजिटिव लिखें। फॉर एग्जांपल इफ आई राइट हियर एस ऑफ -1, it means you will get the last character of this string s, because -1 denotes last character of this string s, and here last character is what? A. Now if you want to get very first character of this string, definitely you will use positive index, that is 0, because you know 0 मतलब सबसे पहला पोजीशन पर जो करेक्टर होगा वो आ जाएगा। ना सोचिए इन C++ जावा लैंग्वेज अगर ये नहीं है, होता ही नहीं है C++ जावा में, मुझे लास्ट करेक्टर का पोजीशन यूज करके गेट करना है उस करेक्टर को, तो आप क्या लिखेंगे? पहले आप लेंथ काउंट करेंगे। लेंथ क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब लेंथ जो भी आएगी उसे -1 करेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए 5 करेक्टर हैं तो लेंथ 5 आएगी, बट पहला करेक्टर 0 पोजीशन पर है तो जो लास्ट करेक्टर होगा वो 4 पर होगा। तो आप यही कर रहे हैं, पहले स्ट्रिंग की लेंथ निकालेंगे फिर -1 करेंगे। C++ जावा .NET लैंग्वेज में लास्ट करेक्टर पहुंचने का इंडेक्स ये होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो रहा है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो ये आसान लगता है। पाइथन ने और आसान कर दिया, आप ये लगा लो, दोनों का मतलब एक ही है। फाइन, तो क्विकली आप रिवर्स इंडेक्सिंग का यूज करके इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, दोनों सही है। आपकी हैबिट अगर ये है तो आप ये यूज करिए,
नया सीखना है तो आप ये सीखिए, ये भी सीखिए। फाइन। नाउ सपोज करिए एक स्ट्रिंग लेते हैं s इक्वल टू, आई राइट हियर, इसका विजुलाइजेशन करते हैं। विजुलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। Now, suppose if I write here print s of 2, it means what I want to get the character present at second position. So you can use s within a square bracket, you can write 2. So definitely you will get this t. Now, you can also write s of -4. Both are same. You can get this t character either using 2 position or -4 position. Both return same result. Now, this is what, this is this. But now, if you write s of 10, then what will happen? It means you want to fetch character present at 10th position, but on this position you are not having any particular character. Maximum position that you can use, that is up to 5. So definitely you will get error saying index error, string index out of रेंज। अगर हम जावा पढ़ रहे होते तो लिखा होता है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, यहाँ पे लिख दिया उन्होंने स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी एरर आती है, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन का इंडेक्स हो या रिवर्स वाला इंडेक्स हो, रेंज में होना चाहिए। रेंज का मतलब रेंज फंक्शन नहीं, रेंज का मतलब है जो आपकी लिमिट है इंडेक्स की, वो आपकी होनी चाहिए। तो ये लिमिट है 0 to 5 और ये है -1 to -6। तो इसके बाहर अगर जाएंगे तो ये आपको एरर मिलेगी। आपने कर दिया -8, अब -8 पोजीशन पर करेक्टर तो है ही नहीं, अगेन क्या मिलेगी एरर। Fine. Now, what I want to get a substring, not a particular character. I want to get a substring like this. I want this YTH. तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप एक बार में एक से ज्यादा करेक्टर गेट कर पाए? So if I try to write the code like this, s of like 1, 2, 3, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई हम चाहते हैं कि ये भी आ जाए, y भी आ जाए, t भी आ जाए, h भी आ जाए। मैंने 1, 2, 3 लिख दिया कॉमा लगाकर। अब देखते हैं पाइथन में चलता है या नहीं। यू आर गेटिंग एरर कि ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका एक दूसरा कॉन्सेप्ट दिया गया और उस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया पाइथन के अंदर स्लाइसिंग। Slicing means getting substring from a string is the concept of
स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग का सिंटैक्स क्या होता है, कैसे ये काम करती है, ये हमें पहले सीखना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका जनरल सिंटैक्स लिखूं तो जनरल सिंटैक्स इज लाइक, फर्स्ट you will write your start position, then put a colon, then you will write your stop position, then again put a colon, then your step. It is similar to your range function. डिफरेंस क्या है, रेंज फंक्शन में जो आप लिखते हैं वो एक्चुअल वैल्यूज होती हैं, स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू। यहाँ पर स्टार्ट वैल्यू नहीं, यहाँ पर स्टार्ट पोजीशन है, स्टॉप पोजीशन। अगर आप यहाँ जीरो लिखेंगे तो आउटपुट में जीरो नहीं आएगा, आउटपुट में जीरो पोजीशन का करेक्टर आएगा, डेट इज पी। बस इतना डिफरेंस है, बाकी दोनों का काम करने का तरीका एक ही है। जैसे रेंज फंक्शन समझा था उसी तरह से कुछ यहाँ पर भी है, समझते हैं प्रॉपर वे में। सो यू वांट YTH, it means you want to start substring from this Y. So you will write, in place of a start position you will write here 1. 1 is what? 1 is the position of this Y character. So start position is obviously inclusive, stop position is exclusive, right? So if I write here 1, after 1 then put a colon. Now I want to go up to H. So if I write position of this H like 3, this is 3, तो आपको लग रहा है कि 3 पर जो करेक्टर है वो मुझे मिलेगा, तो वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टॉप पोजीशन इज एक्सक्लूसिव, स्टार्ट पोजीशन इज इंक्लूसिव। स्टार्ट पोजीशन पर जो करेक्टर है वो सबस्ट्रिंग का पार्ट बनेगा, बट स्टॉप पोजीशन जो आप बता रहे हैं उस पर जो करेक्टर है वो आपका सब स्ट्रिंग का पार्ट नहीं बनेगा। देन आफ्टर दैट यू विल राइट स्टेप। स्टेप मींस कि जहां से आपने शुरू किया है वहां से स्टॉप तक जाने में आप कितने का इंटरवल लेंगे। हमने कहा एक एक करेक्टर का लेना है, यानी कि वाई से टी, फिर टी से एच, ऐसे जाना है। तो दैट इज स्टेप साइज इज 1। नाउ यू विल सी द आउटपुट, यू विल गेट वाई टी, नॉट वाई टी एच। So if you are looking for YTH, then you will use the slicing like this, 1 colon 4 colon 2. You will get YTH. Fine. So start position is inclusive, stop position is exclusive. Now suppose if I write here print s of 0 colon 5 colon 2, it means you want a substring that will start from 0th position of this S, that is from P, and will go up to 5 in exclusive manner, and you will take step size as 2. So यहाँ पर आपको P मिलेगा, P के बाद 2 का इंटरवल लेना है, यानी P to Y 1 स्टेप हो गया, Y to T दूसरा स्टेप हो गया, यानी कि P के बाद आपका T आएगा, फिर T के बाद फिर 2 स्टेप लेना है, एच नहीं आएगा, ओ आएगा, ठीक है। फिर ओ के बाद 2 स्टेप आप ले नहीं पाएंगे क्योंकि आपका एक्सक्लूसिव 5 है, तो 4 तक ही आपको जाना है। तो इसका आंसर आना चाहिए पी टी ओ। नाउ इफ यू राइट लाइक दिस, थोड़ा सा इसमें और मैं चीजें ऐड कर रहा हूं। जहां से आपने स्टार्ट किया है, अगर आप राइट हैंड साइड पे जाना चाहते हैं तो आपको पॉजिटिव स्टेप लेने हैं, और अगर आप रिवर्स सब स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं, रिवर्स सब स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं तो आपको नेगेटिव स्टेप लेना है।
नेगेटिव स्टेप फॉर सब स्ट्रिंग इन रिवर्स डायरेक्शन। पॉजिटिव स्टेप कब रखने, जब आपको सब स्ट्रिंग बनानी है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड का मतलब जहां से स्टार्ट किया वहां से फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि राइट डायरेक्शन में। फाइन। सो यहां पर आप क्या चाहते हैं, -6 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि यहां से आप स्टार्ट करेंगे और आप कहां जाना चाहते हैं, -2 पे जाना चाहते हैं। -2 आपका ही है, यानी कि जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं वहां से राइट मूव ले रहे हैं, यानी कि आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में सब स्ट्रिंग बनानी है। तो आपके स्टेप क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और आपका स्टेप भी क्या है, पॉजिटिव ही, और +1 का है, यानी कि क्या होगा, PYTH, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव होगा और आपका आउटपुट आएगा PYTH। अब इस PYTH आउटपुट लाने के लिए आप अगर स्लाइसिंग ये वाली यूज करेंगे तो ये भी सही है, दैट इज S of 0 then 4 then 1, क्योंकि जो 0 है ये -6 है, और जो -6 है वो 0 है, और जो 4 है वो -2 भी है, और जो -2 है वो 4 भी है। यानी कि जहां पर 0 लिखना है वहां -6 लिखा जा सकता है, और जहां पर 4 लिखना है वहां -2 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 6 की जगह -6 की जगह मैंने 0 लिख दिया, एक ही बात है, और -2 की जगह मैंने 4 लिख दिया, -2 की जगह 4, एक ही बात है। स्टेप 1 का लेना है। सरप्राइजिंगली हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब 4 और -2 एक ही बात है तो मैं यहाँ -2 नहीं लिख सकता। हमने कहा आप ये भी कर सकते हैं कि जहां पर 4 की नीड है वहां -2 लगा सकते हैं। तो ये 0 से शुरू करना है, -2 तक जाना है, तो 0 से शुरू करना है, -2 तक जाना है, यानी कि जाना राइट डायरेक्शन में है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सेम इंडेक्सेस देखने हैं, पॉजिटिव वाले देखने हैं या नेगेटिव टू नेगेटिव तक, नहीं, आपको डायरेक्शन देखनी है, किस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं। आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो आपको इस तरह के इंडेक्स दोनों फोकस करने हैं, और लेफ्ट में जा रहे हैं तो अगेन दोनों फोकस आप कर सकते हैं। तो इसका आउटपुट वही आएगा जो इन दोनों का है। तो फिर हम एक और ऑप्शन यूज कर सकते हैं इसी काम को करने के लिए, उसका आउटपुट भी सेम आएगा। मैं यहाँ -6 ले देता हूँ और यहाँ पर 4 कर देते हैं, एक ही बात है, अभी भी सेम आउटपुट आएगा। -6 to 4 जाना है। ठीक है, अब बात करते हैं रिवर्स सब स्ट्रिंग बनाने की। मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए O से लेकर Y तक। तो O से लेकर Y तक अगर आपको चाहिए तो आप शुरू करना चाहते हैं 4 से, और आपको Y चाहिए इंक्लूसिव मैनर में, तो आप पोजीशन बताएंगे P की, चाहे तो 0 बताएं चाहे तो -6 बताएं। मैंने बता दिया 0। लेकिन इस बार आपको क्या करना है, आपको रिवर्स डायरेक्शन में सब स्ट्रिंग बनानी है। 4 से शुरू करना है, 0 तक जाना है, तो स्टेप आपके क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। तो यहाँ पर स्टेप -1। अब -1 लेंगे, -2 लेंगे, वो आप देखो आपको कितना इंटरवल चाहिए। ठीक है, लेकिन नेगेटिव का मतलब होता है कि रिवर्स डायरेक्शन में आपकी सब स्ट्रिंग बनेगी। कहां से, स्टार्ट से लेकर कहां तक, स्टॉप पोजीशन तक, लेकिन स्टॉप को क्या मानना है, एक्सक्लूसिव मानना है। OHTY, OHTY। अब इसी काम को करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं, 4 की जगह -2 लिखा जा सकता है और 0 की जगह -6 लिखा जा सकता है, और इसको फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है, -2 0, -2 से शुरू करना है, 0 तक जाना है, रिवर्स डायरेक्शन में जाना है।
अब कुछ इंटरेस्टिंग यूज केसेस, ये तो आसान आसान है। अब इंटरेस्टिंग यूज केसेस क्या है इसमें स्लाइसिंग में? सर सपोज करिए मुझे शुरू करना है 0 से या शुरू करना है मुझे 2 से, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और मैं THON चाहता हूं, N भी चाहता हूं, तो 5 अगर मैं लिखता हूं यहां पर, तो 5 तो एक्सक्लूसिव होगा, तो 2 to 4 इंक्लूसिव आएगा, यानी कि Y आएगा, T आएगा, H आएगा, O आएगा। सॉरी, इस वाले में 2 से स्टार्ट करेंगे तो T आएगा, H आएगा और O आएगा, बट मुझे तो N भी चाहिए। तो अब कैसे लिखो? क्या आप यहाँ 6 लिखने की बात कह रहे हैं? क्योंकि अगर आप यहाँ 6 लिखेंगे तो ये एक्सक्लूसिव है, तो इंक्लूसिव में कौन 5 आएगा, लेकिन एक तरफ ही आउट ऑफ इंडेक्स भी तो हो गया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग यूज केस बन जाता है कि अगर मुझे स्लाइसिंग में लास्ट करेक्टर चाहिए तो लास्ट करेक्टर की पोजीशन कैसे लिखी जाए, क्योंकि वो तो फिर लास्ट करेक्टर से +1 लिखी जाएगी। तो 2 आंसर दिए गए। पहला आंसर दिया गया कि अगर आप यहाँ पर लास्ट करेक्टर तक जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आउट ऑफ इंडेक्स एरर नहीं देखेंगे। आप चाहे 6 लिखें, चाहे 7 लिखें, चाहे 8 लिखें, चाहे 9 लिखें, ये हमारा क्या होगा, अप टू लास्ट करेक्टर माना जाएगा। तो पाइथन में जब कभी हमारा आउट ऑफ इंडेक्स की पोजीशन आप लिखते हैं तो इसका मीनिंग स्लाइसिंग में इंडेक्सिंग एरर ना आकर अप टू लास्ट करेक्टर माना जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर 6 लिख दूं तो 6 इंडेक्स एरर ना देकर ये आपका अप टू लास्ट करेक्टर तक कंसीडर किया जाएगा। THON in place of 6 if I write 60 again you will not get error, बट ध्यान रखना ये सिर्फ स्लाइसिंग में है, इंडेक्सिंग में एरर आएगी, स्लाइसिंग में नहीं आ रही है। तो ये अप टू लास्ट करेक्टर सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेगा। सर इसमें स्टेप देना जरूरी है या बाय डिफॉल्ट 1 ही लेता है वो? हाँ, इस पर डिस्कशन करेंगे, ये भी यूज केस हमारे अच्छे होते हैं स्टेप पर। ठीक है, चलो फिलहाल हमने यहाँ पर अगर हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो इंडेक्स अगर हम आउट ऑफ इंडेक्स देते हैं देन वी विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ एरर एंड इट विल कंसीडर अप टू लास्ट करेक्टर। फाइन, नाउ द थिंग इज व्हाट, what about default values? Like in range we are having the concept of some default values. So क्या स्लाइसिंग के अंदर भी डिफॉल्ट वैल्यूज का कॉन्सेप्ट होता है? आंसर इज यस। सो सबसे पहले मैं स्टॉप की डिफॉल्ट वैल्यू की बात करता हूँ। व्हाट विल बी द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टॉप पोजीशन if we do not provide this value explicitly? So the answer is it totally depends on the step value. If the step value is positive, then it will consider up to last character. If step value is positive, doesn't matter कि वो पॉजिटिव में +1 है, +2 है, +3 है, +5 है, फर्क नहीं पड़ता, it will consider up to last character. It means इसका जो आउटपुट आएगा वही आएगा जो इसका आउटपुट आपका आएगा। So mathematically, if someone asks you what will be the default value of stop position, so mathematically it will be like length. Default value of stop is len of s if step is, but if step is negative then it is not same. If step is negative, that is -1, then default value of stop position is up to last character in reverse direction. तो दो तरीके से आपसे सीखेंगे इसका इंटरप्रिटेशन समझने के लिए। स्टार्ट करेंगे 2 से एंड इट विल गो अप टू इंक्लूसिव ऑफ लास्ट करेक्टर। इसको समझेंगे, it will start from this position and will go up to last character inclusive of last character but in reverse direction.
This is in forward direction, up to last character in forward direction, up to last character in reverse direction. फाइन, तो 2 से स्टार्ट करेंगे और टी वाई पी इसका आउटपुट आएगा, टी वाई पी। फाइन, मैथमेटिकली कोई पूछता है कि सर यहां पर वैल्यू क्या आएगी, सो डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टॉप इज माइनस लेन प्लस 1। दिस इज द मैथमेटिकल वैल्यू। अगर कोई आपसे पूछता है कि नहीं मुझे फिगर बताओ, नंबर बताओ क्या आएगा, तो वो ये आता है। जो लेंथ है वो निकालो पहले, 1 2 3 4 5 6। अब लेंथ जो आई उसमें +1 करो यानी कि 7, उसके पहले माइनस साइन लगा दो यानी कि -7 आप यहाँ पर बाय डिफॉल्ट बताएंगे किसी को। जब -7 होगा तो अपने आप कहाँ तक जाएगा, ये -6 तक चलेगा। ठीक है, तो मैथमेटिकली दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू इफ स्टेप इज पॉजिटिव एंड दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू इफ स्टेप इज नेगेटिव। अगर आप मैथमेटिकली नहीं पढ़ना चाहते, कॉन्सेप्चुअली समझना चाहते हैं, इट विल गो अप टू लास्ट कैरेक्टर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट विल गो अप टू लास्ट कैरेक्टर इन रिवर्स डायरेक्शन। फाइन, if step is negative. Now similarly, if someone asks you what will be the default value of start, stop की वैल्यू क्या होती है समझ में आ गया, start की वैल्यू क्या होती है। If I do not write this value and if I write here like 2, then what will happen? Because मैंने start की वैल्यू नहीं लिखी है। Again, it depends on the step. If step is positive, then default value of stop position is 0. I'm repeating this statement. If step is positive, then default value of start position is 0. Now you can think like it will generate a substring that will start from 0th position and will go up to second position in exclusive manner. तो 0 से 1 यानी कि 0 आएगा और आपका 1 आएगा, पी वाई आएगा सिर्फ। ठीक है, और 2 एक्सक्लूसिव वो नहीं है। Now if someone asks you what will be the default value of start position if step is negative, doesn't matter it is -1 or -2 or -3. If it is negative then it will be -1 not 0. तो डिफॉल्ट वैल्यू स्टार्ट की 0 होती है कब, स्टेप पॉजिटिव होने पर, और डिफॉल्ट वैल्यू स्टार्ट की -1 होती है कब, जब स्टेप नेगेटिव हो। कितना नेगेटिव है इससे फर्क नहीं पड़ता, -1 है -2 है -3 फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर ये -1 है तो देखते हैं -1 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, 2 तक एक्सक्लूसिव मैनर, यानी कि एन आएगा, ओ आएगा, एच आएगा, टी नहीं आएगा क्योंकि टी सेकंड पोजीशन पर है जो कि एक्सक्लूसिव है। NOH. So let me write here. Default value of start is 0 if step is positive. Default value of start is -1 if step is negative. Now the situation is what, sir, what will happen if I do not specify step like this? So in this expression I have not specified step value. तो अब मुझे बताओ स्टार्ट की वैल्यू क्या मानेंगे, क्योंकि स्टार्ट की वैल्यू मानने के लिए आपको फोकस करना होता है स्टेप के लिए। अब स्टेप भी नहीं गिवन है तो फिर क्या करें इसमें, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अगर स्टेप नहीं है तो स्टेप की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है। ये किसी पे डिपेंड नहीं करती, फिर सुनेंगे, स्टेप की डिफॉल्ट वैल्यू किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती। इट विल बी 1, ऑलवेज इट विल बी 1 +1 दैट इज +1। तो यहाँ पर जब स्टेप नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट आपको स्टेप क्या मानना है, +1 मानना है, और +1 के हिसाब से अब आपको माननी होगी स्टार्ट वैल्यू क्या होगी। तो ये क्या बन जाएगा फिर तो ये वाला बन जाएगा।
क्योंकि अगर आप डिफॉल्ट वैल्यू स्टेप की हमेशा हमेशा +1 होती है तो उसके हिसाब से ये क्या आएगा, मेरा 0 आएगा। तो ये 0 से लेकर 2 तक, यानी पी वाई आना चाहिए बस। ठीक है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि ये है तो ये होगी, वो नहीं। स्टेप हमेशा +1 अगर नहीं नहीं गिवन है आपको। ठीक, नाउ लेट मी क्रिएट सम मोर यूज केसेस। What will happen if I write here this? अच्छा, 0 से पहले मैं यहाँ पर चलो 1 लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि 0 वाला थोड़ा अलग अलग हो जाएगा। सो इन दिस स्लाइसिंग आई एम नॉट स्पेसिफाइंग स्टार्ट पोजीशन, स्टॉप पोजीशन। So you have to consider default values for start and stop position according to this step. Step is positive. If step is positive, then the default value of start is 0 and default value of stop is up to last character in forward direction. It means you will get again PYTHON. You will get the whole string as it is. But if I write this, then what you will get in this situation? Yes, कीर्तित, क्लास में हैं आप? कीर्तित Yes, sir. आउटपुट क्या So आएगा 0. लास्ट वाले का? If I write this line, yes. So 0 will be the start value. Okay, tell me the start value and stop values in this situation. So -1 start value. Start value -1 and stop value So last character. last character. In which direction last character? So in negative direction. So tell me the Reverse final direction. substring. Yes, sir. So tell me the final substring. What will be the final substring if I execute this expression? NOHTY. Why? So P will be there or not? No, sir. So yeah, P also. P होगा. Yes, sir. Last character up to last. Yes, sir. P is there. So you will get P in the output. NOHTYP. So whenever you need to reverse a string, it is like a magical slicer. Just you need to write this code and you will get the reverse of a string. No matter string is from user at runtime or you have hard coded the string in your code, it doesn't matter. तो जब कभी किसी भी स्ट्रिंग के लिए आपको रिवर्स करना है तो जस्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया जो इस काम को करने के लिए यूज किया जा सकता है. नाउ थिंग इज व्हाट, सपोज इफ आई राइट हियर 0, देन व्हाट विल हैपन? क्योंकि सर स्टार्ट और स्टॉप की डिसीजन हम स्टेप से लेते हैं. स्टेप नेगेटिव है तो ये है, स्टॉप पॉजिटिव है तो ये है. तो क्या मैं यहाँ पर 0 लिख सकता हूँ? 0 क्या मानेंगे? नेगेटिव मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं? और क्या 0 को नेगेटिव माना जा सकता है ऐसे करके -0 और ऐसे करें तो +0? मतलब मैथमेटिकली अगर कोई पूछता है 0 नेगेटिव है या पॉजिटिव है, सर एरर आएगा इसमें. एरर आना चाहिए. ये भी एक सिनेरियो हो सकता है, माइट भी पाइथन मना कर दे भाई ये सही नहीं है. देख रहे हैं तो इसको रन करा कर देखना पड़ेगा क्या इसका आउटपुट आ रहा है. स्टेप क्या 0 हो सकता है? यू विल गेट एरर. स्लाइस स्टेप कैन नॉट बी. अच्छा, अगर कोई वैसे आपसे पूछ ले इन जनरल मैथमेटिकली 0 इज व्हाट, नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू, देन व्हाट यू विल रिप्लाई? Positive value, sir.
जीरो को पॉजिटिव माने पढ़ना चाहते हैं, आपने बता दिया। हाँ, इसको आप गूगल पर सर्च करके अपना टेस्ट कर लीजिए, चेक कर लीजिए सही आंसर है गलत है। सो इट इज इन पाइथन इट इज स्टेप must not be zero. Fine. Now let me create one more use cases. Suppose if I write here 2 colon 5 colon -1. यस मनीष, इसको एक्सप्लेन करिए, क्या मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। If I write as of 2 colon 5 colon -1, then what will be the interpretation of this expression? Manish Sinha, are you there in the class? रवि कुमार, बताओ इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? ये सर एरर दिखाएगा। एरर इंटरप्रिटेशन बताओ क्या है। एरर आएगा, चलो ये तो फाइनल आपने बता दिया, आउटपुट वो हम डिस्कस करेंगे, पहले इसका बताओ इंटरप्रिटेशन क्या है। क्या आप 2 से 5 तक जाना चाह रहे हैं, लेकिन इसका हमको वे -1 का गैप चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन जाना चाह रहा है। हाँ, यानी कि एक तरफ आप 2 से 5 तक जाना चाहते हैं, और ये तब पॉसिबल है जब आपका स्टेप पॉजिटिव हो, जी, ठीक है। लेकिन आपने स्टेप दे रखा नेगेटिव, तो इस स्टेप से तो आप कभी भी सब स्ट्रिंग नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो अब ये तो हो गया इसका इंटरप्रिटेशन, अब आता है इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो इस तरह की सिचुएशन में दो ही रास्ते हैं, या तो पाइथन एरर दे दे, मना कर दे भाई ये गलत है, और पाइथन ने एरर देने की वजह यहाँ पर एक सॉल्यूशन निकाला, एम्प्टी सब स्ट्रिंग। तो अगर आप सब स्ट्रिंग नहीं बना पाते, आपके स्लाइसिंग में जो पोजीशंस लिखी हैं स्टार्ट स्टॉप या स्टेप की, उनसे आप सब स्ट्रिंग नहीं बन पाएगी। सो इन प्लेस ऑफ एरर पाइथन ने एम्प्टी सब स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट रखा हुआ है स्लाइसिंग में। अगर ऐसा होता है तो you will get empty substring, you will not get error. Fine. चलिए थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं इस तरह के सिनेरियो पर। Yes, Anshika, tell me the interpretation of this expression. सर इसमें स्टेप तो बाय डिफॉल्ट 1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, और इसमें भी एम्प्टी सब स्ट्रिंग आएगी, क्योंकि 6 to हम लोग रिवर्स चल रहे हैं और हमारा हम लोग पॉजिटिव स्टेप ले रहे हैं, इसलिए इस पे भी एम्प्टी आएगा। so let me run this program. You are getting again empty substring. Fine. Yes, Arjun, tell me the output of this slicing. Sir, there will be n. You will get only n. According to you, we will get the output n. Yes, sir. Okay, tell me the interpretation of this expression. Sir, actually, last one is in a forward direction. There is 5, 6, 7, 8, 9, anything, but it will consider only the last one, 5. Okay, tell me कि आप इस expression में कहाँ से start करना चाहते हैं सब string बनाना? Sir, from last one, n. नहीं, आप expression देखिए ना, जो मैंने अभी लिखा है इस expression को देखिए और मुझे बताइए कि आप कहाँ से इसको बनाना चाहते हैं। You want to start from n or you want to start from p? So start from n. n. अच्छा मुझे बताइए पहला वाला क्या होता है, स्टार्ट पोजीशन होता है, स्टॉप पोजीशन होता है? Oh, sorry, sir, sorry.
minus 6 to 5. Okay, fine. So tell me the final output of this P. slicing. Take your time. Sir, it will be P. It First will letter be P. only. P and N, sir. P and. P and N or from P to N. Both are different output ना. अगर आप कहते हैं P और N आएगा, it means you will get PN. Substring Sir, of P only, sir, P and N, not P to N. not P to N. Okay. Yes, Krishna. What will be the output of this expression? Pn or P to N or something else? Not getting your voice. Yes, Shivans. P2O, sir. P2O. That is Krishna. P2O. Yes, sir. O. Okay, fine. शिवांश, ये जो आउटपुट ने बताया सही है गलत है? P2O. सर सही है, POITHO. अब मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, that is 3. No. Rohit, tell me the output of this expression. What will be the output of this expression? PYT, sir. P, Y, T. अब मैं आपको एक यूज केस दे रहा हूं और आपने उस यूज केस का कोड प्रिपेयर करना है. यूज केस इज व्हाट? You have to input a string from the user. First task is to find the length of this string. Second task is to find like whether this string is palindrome or not. आपको दो टास्क या चलो एक ही टास्क करना है. आपने सिर्फ ये पता करना है यूजर से स्ट्रिंग जो आई है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है. अब पैलिंड्रोम स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ. कोड आपको प्रिपेयर करना है. करना क्या है वो मैं आपको एक्सप्लोर कर देता हूँ. सपोज करो जो स्ट्रिंग है वो आई है इस तरह से सिविक. सिविक नाम सुना होगा आपने, एक कार का मॉडल है. Yes, sir. अगर मैं इसका रिवर्स निकालता हूं तो इसका रिवर्स क्या आएगा? CIVIC, सेम आएगा. तो इफ द रिवर्स ऑफ ए स्ट्रिंग इज द सेम एज ओरिजिनल स्ट्रिंग देन you have to print it is palindrome. It is palindrome string. Otherwise you will print it is not palindrome. I am just considering this example. सिविक, मुझे नहीं पता यूजर रन टाइम पे क्या लिखेगा. अगर यूजर ने रन टाइम पे लिख दिया ABA तो ये पैलिंड्रोम बन जाएगा. यूजर लिख दिया रन टाइम पे ABC तो ABC का उल्टा ABC नहीं आता. ठीक है, तो वो पैलिंड्रोम नहीं बनेगा. तो मुझे क्या करना है? मुझे इसका कोड जनरेट करना है. तो इसका कोड जनरेट करने के लिए हम लोग जाएंगे सुप्रिया के पास. सुप्रिया, आर यू देयर इन द क्लास? ओके फाइन. एंड वन मोर जिसका नेम यहाँ पर आ रहा है इजी वे.
नहीं, कोई रेस्पॉन्स नहीं है। मनीष, आगे वापस क्लास में नहीं अभी? मनीष नहीं है क्लास में। फाइन, अर्जुन बताना चाहेंगे कैसे इसका कोड लिखा जाए? यूजर से इनपुट लेना है स्ट्रिंग, और मुझे आउटपुट बताना है यूजर को, यूजर ने जो स्ट्रिंग एंटर करी है वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है या नहीं। बताओ, सीडो कोड बता दो, मतलब क्या क्या करना चाहिए। कोड में लिख दूंगा, आपसे बता दो सर ये करिए। No, sir, can't explain. शिवांश बताना चाहेंगे? यस सर। बताइए क्या करना है। कोड में लिखूंगा, आपसे बताइए सर, पहले ये स्टेप, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सर पहले इनपुट लेंगे, एंटर नेम, Fine. Now I'm having original string in as variable. Then सर फिर इफ लगाएंगे, इफ फंक्शन, if keyword, then इफ एस, as दो मिनट, हाँ हाँ, hmm, फिर इसमें रिवर्स स्ट्रिंग वाला वो करेंगे चेक। कैसे? पहले रिवर्स स्ट्रिंग निकालना है हमारे लिए, क्या करना है, कैसे निकलेगी रिवर्स स्ट्रिंग? सर ये वाला एम्प्टी देन सेमीकोलन देन एम्प्टी देन -1 जो अभी आपने बताया था। That is -1. So using this slicing, you will get your reverse string. So let me store this reverse string into a new variable, that is rs. Rs is nothing, it is representing reverse string of this s. Now we are having original string in s variable and its reverse string in rs variable. Now if rs equal to s, so if I compare rs equal to s or s equal to rs, both are same. then When print yes, print your message, that is s is palindrome, that is s is palindrome, else and s is not palindrome. That's it. नहीं, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्प्रिंग से रिगार्डिंग सब स्प्रिंग को हम लोग गेट कर सकते हैं। कैसे सब स्प्रिंग पे काम किया जाएगा, यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। सर RS लिखना जरूरी है। अगर हम जैसे हम लोगों ने उसमें 1 लिया है, उसकी जगह इक्वल टू -1 कर दें। स्टेप आपने 1 लिया है और उसकी जगह -1 स्टेप कर दें, तो आंसर तो सेम आना चाहिए ना। स्टेप तो -1 लिया था मैंने उसमें, जो मैंने अभी लिया है इसमें स्टेप तो -1 ही है। देखिए अच्छा ठीक है, -1 की जगह 1 लिख दे रहे हैं अगर लेफ्ट साइड में, यहाँ पे लेफ्ट साइड में जब RS लिखा है, जैसे आपने RS लिखा है ना, RS लिखा है जैसे, उसकी जगह अगर हम वहां पे स्टेप 1 लिख देते हैं, S
वही ब्रैकेट में कोलन कोलन और 1। like this. हाँ, और तो- दूसरी Hmm. नहीं, लेफ्ट साइड में जैसे आपने RS लिखा है उसकी जगह हम ये जो आप लिख रहे हो यहाँ पे ये लिखते हैं और इक्वल टू यहाँ पे -1 लगा देते हैं, तो भी तो सेम ही होता ना। सर -1 डिफॉल्ट एंड -1 इस लाइन में मुझे कहाँ चेंज करना है? मतलब यहाँ पे सर हाँ, यहाँ पे लिखिए सर, RS को हटा दीजिए। हाँ, हटा S, दिया, अब क्या लिखूं इसकी हाँ, जगह? S एस ब्रैकेट ब्रैकेट कोलन कोलोन कोलन कोलोन -1 या 1 या -1। हाँ, -1 देन तो अगर ये इफ कंडीशन में लगा देते, यही वाला जो है पूरा हाँ इफ में लगा देते ये। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, एक लाइन आपकी कोड की बच जाएगी, एक ही बात है, बोथ आर सेम। बस इसका ड्रॉबैक ये होगा कि अगर आपको रिवर्स स्ट्रिंग भी प्रिंट कभी यूज करनी पड़ी आगे, तो आपको दोबारा से वो स्लाइसिंग करके निकालनी पड़ेगी, और अगर आप पहले से स्टोर करके रख लेते हैं तो इसका एडवांटेज ये होगा कि आगे भी उसका यूज कर पाएंगे बस। तो ये देखो, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है थ्रू आउट पाइथन कोडिंग। जब कभी ऐसी सिचुएशन आपके साथ आए कि यार इस एक्सप्रेशन से जो रिजल्ट बनेगा उसको मैं कहीं वेरिएबल में संभाल के रखूं या सीधा अपने कोड में यूज करूं, उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में यूज करूं, तो हमेशा इसका रिजल्ट ऐसे निकालना है कि क्या मुझे उस इंटरमीडिएट रिजल्ट, उस इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है क्या आगे कभी यूज करना होगा। अगर करना होगा तो इसको आप संभाल के रखें। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर होल एक्सप्रेशन, and in this whole expression this is your sub expression। अब आप इस सब एक्सप्रेशन से जो रिजल्ट बन रहा है उसको डायरेक्ट कंज्यूम करना चाहते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन में, या पहले उस सब एक्सप्रेशन के रिजल्ट को कहीं मेंटेन करना चाहते हैं। तो डिसीजन यही है कि आगे क्या उस सब एक्सप्रेशन के रिजल्ट को यूज किया जाएगा, तो मेंटेन करिए एक वेरिएबल में, अदरवाइज डायरेक्टली कंज्यूम कर लीजिए एक्सप्रेशन। बोथ आर सेम, you will get same out। Sir, ये same example we can use for numbers also to check. It is quite tricky. So if you say कि क्या हम ये नंबर के साथ कर सकते हैं, तो यूजर जो भी नंबर ला रहा है उस नंबर को आप नंबर से ना पढ़कर स्ट्रिंग से ही पढ़िए, क्योंकि जनरली हम नंबर में लाते हैं तो हम उसको इंट में कन्वर्ट या फ्लोट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमें पता है कि ये ट्रिक नंबर पे नहीं चलती है, स्लाइसिंग स्ट्रिंग पे चलती है। तो यूजर से आप नंबर मांगिए लेकिन उसको रीड करेंगे स्ट्रिंग में, और अगर वो स्ट्रिंग में आएगा तो उस पर स्लाइसिंग भी चलेगी। सो इन द सेम प्रोग्राम अगर मैं यहाँ पर एंटर स्ट्रिंग मैसेज को इग्नोर करूं और लिख दूं यहाँ पर 1 2 3, you will get 1 2 3 is not palindrome, and if I write here 1 2 1, you will get 1 2 1 is palindrome। सो एज ए स्ट्रिंग आप इसे कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई आपसे कहेगा कि मुझे इस स्ट्रिंग पर कोई अर्थमेटिक करनी है, तो फिर वो अभी नहीं है, क्योंकि अब पहले आपको क्या करना होगा, उसको नंबर में कन्वर्ट करना ही होगा। तो अभी आप आउटपुट वाइज ऐसा कर सकते हैं, सेम आप कोड यूज कर सकते हैं। सर हम इंडेक्स कंपेयर करके भी पैलिंड्रोम नॉट पैलिंड्रोम दिखा सकते हैं? एक एक इंडेक्स करके भी आप कर सकते हैं एग्जैक्टली। So it will take some time, and I think you have to write some sort of code. I think it will take 4 to 5 lines of code for this comparison. Yes sir। आप ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, ठीक है, एक काम को कई तरह से किया जा सकता है, ऐसा नहीं है जो हमने पढ़ा है वही एक तरीका होता है ना, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब कौन सा बेस्ट होगा, कौन सा बेस्ट नहीं होगा, तो भाई जनरली तो हम यही चाहते हैं कि जितना कम कोड लिखा जाए उतना सही माना जाता है, और एग्जीक्यूशन टाइम जिसका कम हो वो कोड ज्यादा सही माना जाता है। स्ट्रिंग के अंदर हमारे सामने एक सिचुएशन आती है, नॉट इन स्ट्रिंग। सपोज करिए मेरे पास एक x वेरिएबल है और मैंने लिखा है 22y7, तो यू विल गेट रिजल्ट x
3.1428571428. So by default you are getting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 प्लेसेस। जो रिजल्ट आपका आ रहा है 15 प्लेसेस तक आ रहा है। क्या मैं इसे 2 प्लेसेस तक लिमिट कर सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि मेरा 2 डेसिमल प्लेसेस रिजल्ट आना चाहिए, या मैं चाहता हूँ ये 15 नहीं, ये 16 आना चाहिए, 18 आना चाहिए। तो डेसिमल प्लेसेस को कैसे कंट्रोल पाइथन में किया जाए? अगर हम डेसिमल प्लेसेस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो कैसे इसको हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं? ऐसा करने के कई तरीके दिए गए हैं पाइथन के अंदर। उनमें से एक तरीका स्ट्रिंग से होकर भी जाता है, तो आप स्ट्रिंग का भी यूज कर सकते हैं इस काम को करने के लिए। देखते हैं कैसे इस काम को किया जाए। In the string, what you have to write a format specifier for a floating number. So for floating number, format specifier is percentage है। So आपको याद रखना होगा कि जब कभी आपको फ्लोटिंग वैल्यू प्रिंट करनी है, तो वो जो फ्लोटिंग वैल्यू है, वो फ्लोटिंग वैल्यू आप स्ट्रिंग के थ्रू प्रिंट करना चाहते हैं, तो आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना होगा, डेट इज परसेंटेज है। उसके बाद यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, उस स्ट्रिंग के बाद फिर एक मॉडुलस सिंबल लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर आप एक्स लिखेंगे। तो ये एक्स की वैल्यू को रिप्लेस कर देगा इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पर एज इट इज। और ये बाय डिफॉल्ट 3.142857 यानी कि 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस तक दिखाता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस काम को in place of percentage f, if you write 0.2f, इसका मतलब है after decimal point you want only 2 places. If you write here 0.8f, it means you want 8 places after decimal point, 1 2 3 4 5 6 7 8. सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग के थ्रू हम फॉर्मेट कर सकते हैं किसी फ्लोटिंग नंबर को। फ्लोटिंग नंबर को ही नहीं कर सकते, इंटीजर को भी कर सकते हैं। इंटीजर के लिए परसेंटेज डी लगाना होगा, परसेंटेज डी, इस तरह से। ये तो स्ट्रिंग का एक तरीका हो गया, लेकिन एक शॉर्टकट भी है। अगर यही काम आप करना चाहते हैं तो पाइथन के अंदर एक राउंड नाम का फंक्शन है। इस राउंड में आप एक्स पास कर दीजिए और उसके बाद कॉमा लगाकर आप बताएंगे कितने डेसिमल प्लेसेस तक आप इसको राउंड करना चाहिए। तो आपने लिख दिया 2, बस इतना ही। तो ये क्या करेगा, इस एक्स को डेसिमल पॉइंट के 2 प्लेसेस तक राउंड कर। दिस इज द राउंड आर्गुमेंट, नॉट इन द प्रिंट। यह आसान हो गया, बट मैंने बोला एक काम को करने के कई तरीके होंगे, इसके अलावा भी और कई तरीके हो सकते हैं। मुझे इसको 10 प्लेसेस तक लेके जाना है, 10 प्लेसेस तक जाना है, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कभी आपके सामने सिचुएशन आ जाए किसी भी नंबर को राउंड करने की, फ्लोटिंग स्पेशली, तो आप राउंड फंक्शन का यूज करिए रादर देन स्ट्रिंग फॉर्मेट। इसका आप यूज करें, ये भी सही तरीका है, गलत नहीं है, इसका भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब सर ऊपर एफ की जगह कुछ और भी कर सकते हैं, करके देख लेते, देखो। और कोई ऐसा क्वेश्चन जिसको मैंने एक्सप्लेन ना किया हो और आपके मन में आ जाए, तो उसका एक ही तरीका है, करके जरूर देख लें।
यानी कि डेसिमल पॉइंट खत्म हो गया। डी स्टैंड्स फॉर इंटीजर, यानी कि इस एक्स का सिर्फ इंटीजर वर्जन आएगा। ठीक है सर इस- जब आपने ये नहीं स्पेसिफाई किया था कि कितने प्लेस चाहिए डेसिमल के बाद, तो 6 प्लेसेस आए थे। बाय डिफॉल्ट ये बाय डिफॉल्ट ये 6 प्लेसेस की बात करता है इसीलिए। ओके। तो ये आपका इंटीजर रिप्रेजेंटेशन दे देगा, इंटीजर रिप्रेजेंटेशन। पाइथन के अंदर अगर आप किसी स्ट्रिंग को लिखते हैं, लाइक मेरे पास एक वेरिएबल है n, जिसकी वैल्यू है मान लीजिए विराट, और एक है a जिसकी वैल्यू है मान लीजिए, ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है लाइक 34, और एक है स्ट्राइक रेट मान लीजिए 103.56। मेरे पास 3 तरह की वैल्यूज है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है, एक इंटीजर वैल्यू है, एक स्ट्रिंग वैल्यू, एक फ्लोटिंग वैल्यू है। अब मुझे इसको एक स्टेटमेंट में फॉर्मेट करके लिखना है एज ए सिंगल स्ट्रिंग, मुझे इन तीनों को फॉर्मेट करना है। तो मेरे पास कितने ऑप्शन है वो देखो। पहला ऑप्शन जो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था, लेकिन उस ऑप्शन के साथ चैलेंज क्या है कि वो 3.6 वर्जन में ऐड किया गया, उससे पहले वो हमारा कॉन्सेप्ट नहीं चलता। क्या है वो देखते हैं। तो मैं लिखा यहाँ पर, मान लीजिए लिख दिया नेम n कॉमा एज a कॉमा स्ट्राइक रेट ऐसा, और I will use f prefix, that is f string और formatted string। तो किसी भी स्ट्रिंग में वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना है तो एक तरीका मैंने आपको ये सिखाया है। इसी काम को करने का दूसरा तरीका जो आज हमने सीखा है वो यूज करते हैं। इन प्लेस ऑफ f string what I will use format specifier। Here I need a string variable, so I will write format specifier as। It means यहाँ पर एक string variable आएगा रन टाइम। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा %d, एक इंटीजर आएगा। यहाँ लिखा मैंने f, एक फ्लोटिंग वैल्यू आएगी। कहाँ से आएगी? इस स्ट्रिंग के बाद फिर से मॉडुलस सिंबल लगाएंगे और पैरेंथेसिस में इनके ऑर्डर में इनकी वैल्यूज बताएंगे। तो पहली वैल्यू इसको मिलेगी, दूसरी वैल्यू इसको मिलेगी, तीसरी वैल्यू इसको मिलेगी। तो पहली वैल्यू n वेरिएबल में है, दूसरी वैल्यू a वेरिएबल में, तीसरी वैल्यू sr वेरिएबल। तो ये किसकी जगह रिप्लेस होगा? इस स्ट्रिंग में जो सबसे पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसकी जगह पर। तो ध्यान रखना है कि वो स्ट्रिंग होना चाहिए। ठीक है, दूसरा वाला ये वाला, तीसरा वाला ये रिप्लेस। सेम आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अब ये आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपको पता है कैसे कंट्रोल करना है। तो आप डेसिमल पॉइंट के 2 प्लेस तक जाना चाहते हैं तो 0.2 लगा। जब पाइथन 3.6 जब तक नहीं बना था तब तक हम ऐसे ही करते थे। अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप बोलेंगे सर ये बहुत आसान है, बट जरूरी नहीं है। जहां आप जॉब करने जाएंगे वहां पर फ्रेश कोड लिखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपको एग्जिस्टिंग कोड मिल जाए, तो हो सकता है उस समय ये लिखा गया है, तो ये थोड़ा सा आपको आना चाहिए। बट अगर आप एक फ्रेश कोड बनाने जा रहे हैं, हाईली रिकमेंडेड आप यही यूज करें, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। तीसरा तरीका इसी काम को करने का, आप क्या कर सकते हैं, जहां पर आपने फॉर्मेट स्पेस पर लगाए हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा, एस होता है स्ट्रिंग के लिए, डी होता है इंटीजर के लिए, फ्लोट होता है एफ के लिए। याद ना करना पड़े उसकी जगह पर आप क्या लगा देंगे, पोजीशन। 0 पोजीशन पर यहाँ पर स्ट्रिंग में कुछ आएगा तो आपने ये पोजीशंस बना दी। ये फर्स्ट पोजीशन पर कुछ आएगा और ये सेकंड पोजीशन पर कुछ आएगा। आप इन पोजीशंस की वैल्यू को फिल करना है। यहाँ पर कुछ आएगा लेकिन लिखना करली ब्रेसेस में। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कैसे दी जाएगी, तो क्या करेंगे, ये जो मॉडुलस सिंबल है इसको हटाकर एक मेथड कॉल करेंगे फॉर्मेट, और इस फॉर्मेट मेथड के अंदर हम पास करेंगे 0 पोजीशन की वैल्यू ये होगी, फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू ये होगी,
एंड सेकंड पोजीशन की वैल्यू ये है। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ पर आप मान लो सब जगह 0 0 कर दो, तो इसका मतलब हर जगह पर 0 पोजीशन वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हर जगह नेम ही आएगा। यहाँ भी नेम आएगा, यहाँ भी नेम प्रिंट होगा, यहाँ भी नेम प्रिंट। अब देखने में अजीब लगेगा, वो दूसरा पॉइंट होगा, बट कॉन्सेप्चुअली हर जगह एन वेरिएबल ही हमारा रिप्लेस है। और अगर हर जगह मैं सिर्फ 1 लिख दूं तो, या कहीं कुछ लिख दूं, मैं यहाँ 2 लिख दूं, यहाँ 0, तो इस तरह से आ जाएगा। नेम 34, एज 103, स्ट्राइक रेट। तो ये 0 पोजीशन की वैल्यू है, ये फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू है, ये सेकंड पोजीशन की। कौन कहां पर है फर्क नहीं पड़ता, जरूरी नहीं है पहला 0 होगा, कहीं भी कुछ लिख सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये 0 पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन। अगर आप करली ब्रेसेस को एम्प्टी छोड़ देते हैं तो बाय डिफॉल्ट पाइथन इसको फिल कर देगा 0 1 2 3 से, लेफ्ट से काउंट करता हुआ इसको 0 मान लेगा, इसको 1 मान लेगा, इसको 2 मान लेगा, यानी कि इसका मतलब और इसका मतलब एक ही है। एक और तरीका है, वो तरीका क्या है कि आप यहाँ पर पोजीशन की बजाय आप अपने डमी कीवर्ड्स लिख सकते हैं। डमी कीवर्ड्स मान लीजिए आपने दे दिया यहाँ पर NN, एज को दे दिया AA, स्ट्राइड को दे दिया SS। नाउ इन द फॉर्मेट मेथड यू नीड टू स्पेसिफाई द वैल्यूज फॉर दीज डमी कीवर्ड्स, दैट इज इन प्लेस ऑफ NN यू वांट N। ये कौन है, ये वो डमी कीवर्ड है जो यहाँ पर कहीं होना चाहिए, ब्रैकेट ब्रेसेस के अंदर, करली ब्रेसेस के अंदर। और जहां पर ये डमी कीवर्ड मिलेगा इस लेफ्ट स्ट्रिंग में, उसकी जगह पर एन वेरिएबल रख दिया जाएगा, कहीं भी मिले। इसी तरह से यहाँ बताएंगे AA जो डमी कीवर्ड है उसकी जगह A आ जाए, और SS की जगह S आ जाए। ये कुछ तरीके थे जो कभी यूज होते थे पाइथन में, जिस दिन से ये आया है उस दिन से ये बादशाह बन के बैठा हुआ है, और हर कोई इसी को रिकमेंड करता है और यही यूज करता है। सबसे आसान है, कुछ याद नहीं करना, ना पोजीशन ना डमी कीवर्ड, एक्चुअल वेरिएबल ही आपको यहाँ लिखने हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्चुअल वेरिएबल, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअल वेरिएबल। जस्ट आपको F लगा देना है, इंटरनली फॉर्मेटेड स्ट्रिंग अपने आप बन जाएगी। ये सब फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बनाने के पाइथन में तरीके हैं। इतने तरीके से आप पाइथन में फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को बना सकते हैं। रिकमेंडेड वे इज दिस फ्रॉम पाइथन 3.6। आगे के कोड में जब भी जरूरत पड़ेगी मुझे तो मैं इसका यूज करूंगा, और फॉर्मेटिंग के लिए मैं राउंड फंक्शन यूज करूंगा। ये भी कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा राउंड फंक्शन यूज करिए, कंट्रोल करना आसान हो जाएगा, याद कुछ नहीं करना पड़ेगा इसको। So this is what, this is all about the concept of string handling, कैसे string handling को Python में implement किया जाता है। So tomorrow we will start the concept of data structure in Python programming language, like list, tuple, set, dictionary, all these very important data structures in the further code. Fine. So I think मैंने आपको last class में assignment share किया था string handling का, एक बार confirm कीजिए। मुझे ध्यान नहीं आ रहा किया था या नहीं किया था। यस सर किया था। ठीक है, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस उसके आपके रह गए हों जो मैंने नहीं पढ़ाया था उसकी वजह से, तो इस बार आप दोबारा ट्राई करेंगे और इस बार शायद आपके सारे क्वेश्चन स्ट्रिंग हैंडलिंग के हो जाएंगे। देखिए प्रैक्टिस आपको करनी है, मेरा काम आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ जितनी प्रैक्टिस मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ इतने से ठीक है, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपके पास होती है, कोई भी कहीं डाउट है आप रिकॉर्डिंग देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, फिर भी नहीं है क्लास में मुझसे पूछिए कि सर ये पर्टिकुलर पॉइंट्स होंगे नहीं होंगे। लेकिन प्रैक्टिस जो आपको दी जा रही है करने के लिए असाइनमेंट्स के थ्रू, उसको जरूर करिए। चलिए आज की क्लास
सर एक बार आप लूप में ना वो पैटर्न वाले करा दिएगा। लूप के Pattern- पैटर्न वाले यस सर, हाँ, नेस्टेड लूप आपने दे रखे हैं। किसी बैच में आएंगे, मैं करा दूंगा। थिंग इज कि पाइथन के अंदर जो पैटर्न वाला कॉन्सेप्ट है, बेसिकली हम इतना फोकस नहीं करते। जस्ट फॉर लॉजिक बिल्डिंग हम लोग उस पैटर्न पे काम करते हैं। अदरवाइज अगर हम सी वगैरह में पढ़ाई कर रहे हैं, सी को कर रहे हैं, तो वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी प्रैक्टिस अगर आप करना चाहें तो अगेन अच्छा है हमारे लिए कि पैटर्न भी हमें आने चाहिए। मैं एक काम करूंगा, पैटर्न से रिलेटेड उनके जो सॉल्यूशंस हैं, उन सॉल्यूशंस को मैं आपको शेयर करूंगा। तो पहले आप क्या करिए, उन सॉल्यूशंस को ऑब्जर्व करिए, कैसे वो सॉल्यूशंस लिखे गए हैं। ऑब्जर्व करके आप कोशिश करिए समझने की। उसके बाद कोई अगर डिफिकल्टी होती है फिर मुझे बताना, फिर मैं आपको मुझे उसमें एक पैटर्न नहीं आ रहा था और तो मैंने कर लिया है। ठीक है, मैं सारे आपको शेयर कर दूंगा, आप चेक कर लेना जो भी आप करेंगे। ठीक है, चलिए। ओके ओके फाइन, सो कल मिलेंगे सेम टाइम। ओके, थैंक यू।